Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you will be fine. आज हम केमिस्ट्री 9 क्लास का चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 5 का टाइटल है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, और इसमें जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है लिक्विड स्टेट, इवापोरेशन, वेपर प्रेशर एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट एंड इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट, और आखिरी टॉपिक हमारा होगा सब्लिमेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लिक्विड स्टेट को। लिक्विड स्टेट की डेफिनेशन है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर हैविंग नो डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम इज कॉल्ड लिक्विड स्टेट। यानी लिक्विड स्टेट क्या होता है? ये फिजिकल स्टेट होता है मैटर का जिसका शेप डेफिनेट नहीं होता है लेकिन वॉल्यूम उनका डेफिनेट होता है, फिक्स होता है। यानी इसको हम जिस भी बर्तन में रख लेते हैं लिक्विड उसी का शक्ल इख्तियार कर लेता है। हाँ, वॉल्यूम इनका फिक्स होता है, वो कांस्टेंट रहता है। लिक्विड्स हैव सिग्निफिकेंट intermolecular forces, so their particles can slide over one another but cannot move apart. They have no definite shape because their particles can slide over one another. They have definite volume because their particles cannot come closer by applying pressure. दूसरा हमारा टॉपिक है evaporation. Evaporation की definition है the process in which a liquid converts to a gas or vapor is called evaporation. It takes place at any temperature. The molecules of the liquid having higher kinetic energy than the average kinetic energy break their attractive forces with other molecules and escape through the surface of the liquid. In this way, evaporation of higher kinetic energy molecules take place and molecules of lower kinetic energy remains inside the liquid body. Evaporation is cooling process. The rate of evaporation increases by heating the liquid. This is because the heat we supply is used in breaking larger number of intermolecular forces which causes larger number of molecules to evaporate. Vapor pressure and effect of temperature on vapor pressure, यानी वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का उन पे क्या असर होता है, इफेक्ट होता है. द प्रेशर exerted by vapors of a liquid on the walls of container when the liquid is in equilibrium with its vapors. Consider a liquid in a sealed container. The liquid evaporates as shown in the uh, slide number 5. The number of as time passes, the number of vapor molecules increase above the surface of liquid, and some vapor molecules are captured by surface molecules of the liquid. In this way, some vapors change back into liquid state, which is called condensation. ये 3 डायग्राम से समझाने की कोशिश की गई है कि इवोपोरेशन इन क्लोज्ड कंटेनर किस तरह होता है. तो पहला जो सिलेंडर है इन द बिगिनिंग क्या होता है, लिक्विड और वेपर्स जो है वो बहुत कम इवोपोरेट हो रहे हैं. दूसरे में अगर हम देखें कुछ वक्त के बाद क्या होता है, ये जो वेपर्स होते हैं ये ज़्यादा बनने शुरू हो जाते हैं, और आखिरी जो सिलेंडर है उसमें अगर हम देख लें तो जितने वेपर्स बन रहे हैं उतने ही वापस लिक्विड में वेपर्स आ रहे हैं, जिसको हम कंडेंसेशन कहते हैं. यानी आखिरी में अगर हम देख लें तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेज है. इक्विलिब्रियम स्टेज का मतलब ये है कि रेट ऑफ इवोपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या होता है, बराबर होता है. तो इसी को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेज कहते हैं. After some times, the rate of evaporation becomes equal to the rate of condensation, which is equilibrium stage. The pressure exerted by vapors of a liquid on the walls of container at equilibrium with its liquid state is called vapor pressure. By increasing temperature, the vapor pressure of a liquid increases because by increasing temperature, more vapors molecules of the liquid will come out. यानी जो जो हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं उतने ही ज़्यादा वेपर्स बनते जाते हैं और उसके नतीजे में जो वेपर प्रेशर होगा वो भी ज़्यादा होगा. उसके बाद इनको एक ग्राफ के ज़रिए से समझाया गया है. ग्राफ में क्या है, एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या है, वेपर प्रेशर है, और वाई एक्सिस पे हमारे पास वेपर प्रेशर और एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है. तो 4 एग्जांपल दिए गए हैं. एक क्लोरोफॉर्म का है, दूसरा इथेनॉल का, तीसरा वाटर का और चौथा इथेनोइक एसिड का. तो जो जो हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं
वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता जाता है। चौथा हमारा टॉपिक है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। यानी बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, बल्कि ये वो टेम्परेचर होता है जिस पे लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। एट बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड बिकम्स कांस्टेंट। और जब बॉइलिंग पॉइंट रीच हो जाता है तो वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। उसके बाद हम इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट पे एक्सटर्नल प्रेशर का क्या असर होता है। Boiling point of a liquid is directly related to external pressure or atmospheric pressure. If we increase external pressure on a liquid, we must increase vapor pressure of liquid also to make the two pressures equal and boil the liquid. Vapor pressure can be increased by increasing temperature of the liquid. It will increase boiling point of the liquid. यानी बॉइलिंग पॉइंट एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ने से बढ़ता है, ज़्यादा होता है, और अगर एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। और वाटर का माउंट एवरेस्ट पे अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देखें तो वहाँ पे हमारे पास हो जाता है 70 डिग्री। और अगर प्रेशर कुकर में हम वाटर का बॉइलिंग पॉइंट देखें तो वहाँ पे 120 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि चूँकि सी लेवल पे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता, 1 एटमॉस्फेयर होता है, तो वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। जो हम ऊपर जाते हैं तो एक्सटर्नल या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। इस तरह हम जब माउंट एवरेस्ट पे चले जाते हैं तो वहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है, तो डेफिनेटली जो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का होगा वो भी कम हो जाएगा और वो हो जाएगा 70 डिग्री। और इसी तरह प्रेशर कुकर में हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा देते हैं। इस वजह से वाटर जो नॉर्मली 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है वहाँ पे 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो जाता है। आखिरी जो हमारा टॉपिक है वो है सब्लिमेशन। Sublimation is the process during which solids directly changes into gas or vapors by heating without changing into liquid. For example, iodine, benzoic acid, and ammonium chloride. When violet dark iodine solid is heated in a beaker close by a water watch glass, it changes into violet black vapors, which crystallizes changes into crystals on the watch glass. इसी तरह कैम्फर काफोर की गोली जिसको हम कहते हैं। तो सब्लिमेशन बेसिकली वो प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में या वेपर स्टेट में। होना तो ये चाहिए कि सॉलिड पहले लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद वेपर में, लेकिन इसमें क्या होता है, सॉलिड डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह हमारे पास आयोडीन है, उसको अगर हम हीट करते हैं तो ये डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। बेंजोइक एसिड भी इसी तरह है और अमोनियम क्लोराइड भी इसी तरह है। और इसी तरह कैम्फर जो है, जिसको यूजुअली ये टॉयलेट्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, तो वो भी क्या होता है, डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। थैंक यू।